जय हिंद एवरीवन। ऐसे विज्ञान की न्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज डे 12 ऑफ 30 डे 30 पिक्चर डिस्कशन सीरीज। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूजिंग आवर टेलीग्राम चैनल ऐसे विज्ञान 47। यू कैन गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ OIRs and other study material related to SSB. Here we have posted the CIQ, which are very important for your interview. If you are going for the interview, please do prepare that. And also on a daily basis, we share the GTO structure with their solution. And you can also get connected through these videos which we continuously uploading in our YouTube channel. Now talking about the picture of the day, you can clearly see this is the picture of the day. Here is a boy who is drawing in the water, okay, and there is a boat. In this boat you can see this first person, second person and third person. There are three person in the boat. So as I'll show you that this is the boat, this is the boatsman who is holding this, okay, this is the boatsman, this is the boatsman, this is the boy number one, and this is boy number two. Okay, so from this we are taking our hero. So our hero will come from this place because the drawing जो ये डूबने वाला बच्चा है, this person cannot be our hero. Okay, now talking about what you see, this is the first question which comes in everybody's mind, or this is the first question which you have to ask to yourself. So you can clearly see a boy is drowning in the water and there is a boat behind the boy and three people are sitting in it. Three people are sitting in a boat and there is a boy. एक पानी से भरा हुआ तालाब, okay, and it could be एक झील भी कह सकते हैं आपको, and this is the background. Now coming to the introduction of a hero. Raju is a hero who is of age 25, an engineering graduate. Okay, so this is the introduction of a hero. First name, then age, then designation or work. Okay, you got the answer of this. So introduction आपने hero दिया है. Now coming to the main story. अब story कैसे शुरू होती है? He had gone to Nainital for the boating with his friends during the short vacation. While enjoying the boat in the lake, Raju noticed a boy waving his hand and struggling in the water. The boy has slipped from the another boat and was drowning. तो उसने देखा कि एक बच्चा जो है when he went for the Nainital for the boating with his friend जो कि short vacation में था, after that he noticed कि there is a boy who just जो slip हुआ और वो पानी में गिर गया, and after that he was waving his hand. Without wasting time, Raju immediately informed the boat's operator to sail the boat towards the boy and threw a life jacket towards the boy. As the boy was unable to hold it properly, Raju quickly dived into the water, swam toward him using his swimming skills. He held the boy firmly and kept the head of the boy above the water. With the help of the boatsman and his friend, Raju safely brought the boy into the boat. The boy was given first aid and made comfortable. Later, Raju informed the local rescue team and ensured the boy was safely reunited with his parents. And he changed the clothes and enjoyed the vacation. So this is about the story. हर एक story complex नहीं हो सकती है. You have to understand that when you get, first thing is that this is about the TAT. Okay, so in TAT, when you go for the TAT thematic perception test, you get the 11 pictures. Okay, you get the 11th picture and 1 plus 1 blank slide. This blank slide you have to work on it. Also prepare 2 stories, at least 2 stories. Because एक स्टोरी आपकी बोट वाली आ गई है तो यू कैन नॉट, आपने अगर स्लाइड ब्लैंक स्लाइड इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द blank slide a story which is related to sports and you are getting the same picture in the 11 pictures, then these 2 stories will be very helpful. Because एक स्टोरी आपकी पहले लिख दी है एंड एक स्टोरी आप दोबारा से लिखते हो, सो इनडायरेक्टली फ्रॉम दीज 12 पिक्चर्स यू हैव बेनिफिट ऑफ +2 में आप चल रहे हैं. देन रेस्ट बचती हैं 10 पिक्चर्स. अब 10 पिक्चर में से ऑलमोस्ट अगर आपके 12 पिक्चर में से
7 to 8 पिक्चर भी अगर आपकी सही है तो यू आर डूइंग योर बेस्ट। ओके, तो इस टाइम पे 7 to 8 में से आपका मार्जिन अगर 2 रह जाता है तो 5 और 6 स्टोरीज आपने बनानी रह जाती है। सो दिस इज द 50% ऑफ द स्टोरीज। तो यहाँ पे 50% हो जाता है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी पिक्चर में आप नेगेटिविटी को नहीं लेके आते हो, तो न्यूट्रल पिक्चर भी हो सकती है। ओके, सो 50% में आपका यहाँ काम हो जा रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर 12 पिक्चर में से आप एक्शन ओरिएंटेड या किसी स्टोरी में आपने रिलेवेंट नहीं लिखी है तो वो तो हट गई, साइड हो गई। फिर भी आपको 5 से 6 स्टोरी सही करने के बाद यू विल डू योर बेस्ट इन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ये 5 से 6 ही करना है, नॉट डोंट थिंक अबाउट द 50। आपकी जो 12 की 12 पिक्चर होनी दे शुड बी वेरी गुड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज स्टूडेंट। अगर कोई कैंडिडेट कम एक्शंस के साथ सिलेक्ट होना चाहता है, दैट दिस थिंग इज वेरी गुड। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर, या आपको स्टोरी बहुत न्यूट्रल लगेगी, बहुत नॉर्मल लगेगी, बट एज आई टोल्ड यू, a picture or a story is a combination of situations, and how you tackle these situations, that is very important here। आप फालतू के इंस्टेड ऑफ राइटिंग की ये हुआ वो हुआ, अथॉरिटी को लेटर लिखा कि जैकेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, आप सिंपल स्टोरी से भी सिलेक्ट हो जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट what you do in that situation, that matters a lot, how you organize your actions, that matters a lot, your empathy matters a lot। आपको can you see the problem of other person or you can do something in that situation, that is very important। so you have to understand कि यहाँ एक बच्चा डूब रहा था, you are there for the vacation। अब आपने इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिव क्वालिटी आती है यहाँ पे, इनिशिएटिव क्वालिटी। ओके, बिकॉज यहाँ पे इनिशिएटिव क्वालिटी कैसे आई है कि बोर्ड्स तो और बहुत सारी हैं, बट व्हाई आर यू टेकिंग द एक्शन। टॉकिंग अबाउट द ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आसपास में क्या चल रहा है, आप खोए हुए नहीं है। सो वेरी थिंग्स आर देयर। हाँ, और आपने स्विमिंग स्किल का भी दिखाया है, बिकॉज एसएसबी में, नेवी के एसएसबी में पहले पूछा जाता है डू यू नो स्विमिंग। तो अगर आपने पीआई के फॉर्म में लिखा है यू डोंट नो स्विमिंग, और इफ योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज आस्किंग यू कि आपको स्विमिंग आती है, इफ यू नो स्विमिंग से यस, इफ यू डोंट नो स्विमिंग तो यू कैन से सर आई नो अ लिटिल बिट, लाइक इतना जानता हूं कि मैं डूब नहीं सकता, और इतना कोई भी जानता है। ओके, सो ऐसा मत कीजिए। अब किसी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि दैट दे डू नॉट नो स्विमिंग, पर यहाँ पे स्टोरी में तो लिख दिया है कि स्विम टुवर्ड्स दैट पर्सन। ये जो स्विम टुवर्ड्स दैट पर्सन वाली लाइन आई है, बहुत बच्चों को लगेगा कि व्हाई आर वी आर राइटिंग दिस स्विम टुवर्ड्स दिस पर्सन। बट हियर कम्स वन थिंग, ये दीज आर द स्किल्स। ओके, स्विमिंग इज अ स्किल, स्विमिंग इज, आपने जानना पड़ेगा कि स्विमिंग इज अ स्किल। आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन के बाद यू विल गेट सफिशिएंट टाइम, एट द पर्टिकुलर टाइम यू कैन लर्न। ओके, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे उस रूम पे आपसे स्विम नहीं करवाएगा, ना ही वो आपसे बोलेगा कि कैसे आपने फ्रंट से कैसे स्विम करना है, बैक साइड से कैसे स्विम करना है, कौन से पोस्चर्स होते हैं, डोंट लाइक दैट। सो इतना बोले कि सर नदी में नहाते हैं, हमको पता है कैसे नहाना है, स्विमिंग आती है, बेसिक स्विमिंग आती है, जितने में कि खुद की जान बचा सकते हैं। ओके, सो डोंट अननेसेसरीली ये मत सोचो कि मुझे स्विमिंग आती नहीं है, मैं ये स्टोरी में यहाँ पे मैंने लिख दिया स्विम टुवर्ड्स दैट पर्सन, मैं ये क्यों लिखूं, या कोई डूब रहा है तो मैं वहां क्यों लिखूं कि मैं डाइव किया और उसको बचा लिया। इट इज नॉट रिटन देयर कि वो बच्चा बहुत गहरे पानी में डूब रहा है, क्योंकि बच्चे की हाइट कितनी होती है, टॉकिंग अबाउट द किड। सो किड्स की हाइट होती है, किड्स की हाइट होगी अप्रोक्सीमेट 4 फीट, 3 to 4 फीट। और आपकी हाइट कितनी है, यू आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ, आप होंगे, किसी की 175 होगी, किसी की 165 होगी। तो इंस्टेड ये, इसके सामने आपकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी है, इसके लिए एक छोटा तालाब भी बहुत गहरा हो सकता है, आपके लिए नहीं होगा। सब अननेसेसरीली ये मत सोचिए कि बस कैसे स्विम करेगा, कैसे बचाएगा। इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी यू हैव टू एड्रेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, कोई भी प्रॉब्लम दी जा रही है, हाउ यू टैकल दैट प्रॉब्लम, आपको लिटरली आग लगा के नहीं दी जाएगी, बट आप उस चीज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको क्या पता है, बेसिक्स पता है किसी चीज को से टैकल करने के या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हियर वी आर डूइंग दिस ओनली। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि स्विम टुवर्ड्स दैट पर्सन में यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो कि मेरे को तो स्विमिंग आती नहीं है, मैं क्यों जाऊं। सो डोंट कम विथ दीज थॉट्स,
it is very easy to write this story. Okay, this is a very normal story and definitely ये आपके नंबर नहीं काटेगी but ये आपको नंबर ही देगी. Now talking about the word of the day, first is revolt, because nowadays I'm taking the negative words. Okay, तो revolt क्या होता है? Revolt with negative thoughts with positive one. आपने रिवॉल्ट करना है अपने नेगेटिव थॉट को और आपने पावर किसकी लेनी है? पॉजिटिव वंस की, पॉजिटिव थॉट्स की. तो अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने विद द पॉजिटिव थॉट्स आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. वी हैव टू रिवॉल्ट विद योर नेगेटिव थॉट्स यूजिंग द पॉजिटिव वन. नाउ टॉकिंग अबाउट द वॉर, सोल्जर डू वॉर फॉर द कंट्रीज पीस. वॉर क्यों होता है? बिकॉज सोल्जर वांट पीस फॉर देयर कंट्री. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्विट, complete the task before quitting, and completing is better than quitting. Now talking about the dirt, individual effort has a power to clean all the dirt. This is what happened, that talking about the dirt word. ये थॉट कहाँ से आता है मैं बताऊंगा आपको. जीटी ऑफिसर थे हमारे, तो आर जीटी ऑफिसर ने बोला कि देखो इन लेक्चरेट वन ऑफ द कैंडिडेट गॉट द cleanliness drive or make that clean India project. So at the particular time he was talking about the government is doing this, government efforts are working, that at the particular time GTO sir told if individual is taking efforts to clean the country then definitely country पूरी साफ हो जाएगी. So from that word this thought came in my mind that individual effort has power to clean all the dirt. अगर इंडिविजुअली जो आदमी सोच ले रहा है, सब भी इंडिविजुअल सोचते हैं इंडिया के कंट्री में कि डर्ट नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली क्लीन इंडिया होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉक्स रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग. दिस इज now talking about the SRTs of the days. He was forced to vote the candidate whom he doesn't like. तो वहां पे क्या है? फोर्स किया है ना, बट एट द पर्टिकुलर टाइम व्हाट विल यू डू? जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं, यू मस्ट हैव सीन कि वो एक बंद सा कमरा होता है जहां पे आपको कोई नहीं देख रहा होता है. सो ही went there, voted in favor of the person whom he liked, and if he found that he should complain, he complained about the situation. That is what is required. Now talking about the exams are coming near and he fall seriously. So he went to the doctor, took the medicines, take care of himself and prepared well for the examination and gave examination with full dedication. This is required. So this is all about the day 12, and I hope in this journey of from a candidate to a recommended candidate with the SSB Gyan, it will be very easy for you. Stay connected and stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat.